Hello friends, welcome to the Fundamental Pharmacy. And again today we have come up with a news that is a very good success story with us. And today we have Mr. Subrat Kumar Sahu with us. And Mr. Subrat Kumar Sahu has got very good rank in the GPAT, NIPER, and he is also qualified in the Central Government Health Scheme Kolkata CGSS. Okay, so recently in 2020 Subrat Kumar got a rank of All India rank 300 in the GPAT 20, and he also got a very good rank in the NIPER, that is 397 in NIPER 20. And also he is qualified and he is presently working as a pharmacy officer in the Central Government Health Scheme Kolkata, and he got a very good rank in that exam also. He got a All India rank 1. So congratulations to you. And today again our student has a very good opportunity to interact with you, to listen you, to know your views on the preparation of various pharmaco-competitive exams. So I would like to welcome you on the behalf of Fundamental Pharmacy. Welcome you, Subrat. Hi sir, first of all a very good Odisha, and I completed my bachelor degree from Odisha itself, from the university named Biju Patnaik University, and from the College of Institute of Pharmacy and Technology, Saletpur. And then I have at the time I cracked the GPAT exam and also NIPER exam. As sir already doing my master degree at Dipsuru University. At that time, I have given the CGSS exam, so I have cracked at that time with All India rank 1. Then I left from my master degree, and then I have joined in the Central Government Health Scheme CGSS. Congratulations to you. You got a very good job. You got a very good job, government job, central government job, and that is not a that is a very good thing for you, because your life is set now, and you are getting very good salary also. So please, will you please tell me, our student, how you was started your preparation? How you were started your preparation for GPAT as well as NIPER? I have initially started my preparation in the 4th year, and at that time I have gone through the various types of books like this something books, but at that time I did not got the enough sufficient time to study all these things, and at that time I did not crack. At that time in 2019 I have passed, and at that time I am unable to crack the GPAT also. So what I have decided to join a private sector, and then I will prepare at that time simultaneously both as a job and for the GPAT exam. I have gone, and at that time I have founded through social media a Fundamental Pharmacy group. So I have connected with Sachin Yadav sir. Told me a path that we can achieve these things by studying small things with more practice like this. Then I have got introduced by sir, and then sir joined me in a group like this. We have discussed a lot of things through Fundamental Pharmacy. These things then I have वही सर मैं बोल रहा हूँ कि सर बेसिकली तो मैंने जब नहीं हुआ था मेरा 2019 में, तब तो मैंने एक फार्माको विजिलेंस में ज्वाइन हुआ था, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो कॉग्निजेंट है, तो उसके साथ जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ाई करने के लिए सोचा था। उस टाइम में ही सर मैंने इंट्रोड्यूस हुआ था फंडामेंटल फार्मेसी के साथ, उसी टाइम में ही मैंने ज्वाइन हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ाई वगैरह उसी थ्रू फंडामेंटल फार्मेसी मैंने शुरू किया। तो फिर आगे बोथ एज ए जॉब एज वेल एज मैंने प्रिपरेशन दोनों किया साथ साथ। तो इन द ऑनलाइन में पढ़ाई करते थे, वो बस सब ग्रुप वगैरह में डिस्कशन वगैरह करते थे, साथ सेंड नोट्स भी सेंड करते थे, वो चीज़ें हर सब्जेक्ट का नोट्स इंडिविजुअली सेंड करते थे, तो वो भी होता था। उसके साथ साथ ये सब चीज़ें पढ़ाई वगैरह करते थे। देन एग्जाम जब दिया, मेरा आया 300 रैंक आया, देन मैंने जॉब उधर छोड़ा। उसके बाद नाइपर के लिए मैंने तैयारी चालू किया, उसमें भी 396 रैंक आया वही। देन मैंने ज्वाइन किया था दिप्सरू यूनिवर्सिटी में। दिप्सरू यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन किया था, उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा 1 साल के बाद मेरा फिर CGSS का एग्जाम हुआ, तो उधर भी दिया।
उधर भी एग्जाम मैंने पढ़ाई छोड़ा नहीं थी उस टाइम तक, तो मैंने फिर से पढ़ाई वगैरह वही चीज़ें वगैरह फिर से दोबारा रिवाइज किया वो चीज़ें वगैरह। तो फिर दोबारा उसके एग्जाम देने के बाद फिर से रैंक जब आ गया मेरा ऑल इंडिया रैंक 1, तब मैंने छोड़ दिया मास्टर डिग्री। और अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो और आपका जॉब कैसा अब नाउ आई एम करेंटली वर्किंग इन CGHS कोलकाता, जॉब कर रहा हूँ तो एज ए फार्मासिस्ट। हाउ टू स्टडी फॉर जीपैट? जीपैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर के लिए फॉर मी जो मेरे को कुछ स्ट्रैटेजी मेरा है सर, मैं खुद ही बताऊंगा जो स्ट्रैटेजी मेरे को वर्कआउट किया, जो पहली बार में क्लियर नहीं हुआ सेकेंड बार में क्लियर हुआ और एक अच्छा रैंक में ला पाया। पहले तो आपको सर एक आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, एक यूनि डायरेक्शनल होना पड़ेगा, तो बिना डायरेक्शन से कुछ नहीं होता। तो ये एक एंट्रेंस है, एंट्रेंस के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी कौन सा चीज बेस्ट सेपरेट आउट करिए, कौन सा चीज पढ़ना है और कौन सा चीज छोड़ना है। ये हमको ज्यादा कौन सा चीज में कौन सा पढ़ना ज्यादा जितना इम्पोर्टेंट है छोड़ना भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है जो चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा वो रैंक के लिए हमको हेल्प करेगा। ये चीजें हमको पढ़ने के लिए हमको जैसे क्यूटिक्स, कोलोजी, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ये सब चीजें आपको रैंक लाए पढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगा, जिसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद माइनर थिंग्स जो होता है बायोकेमिस्ट्री, वो बेसिक इंजीनियरिंग, ये इसको बाद में आप देख भी सकते हैं। तो वो चीजें पहले सेपरेट आउट कीजिए, कौन सा चीजें पहले पढ़ना है, कौन सा चीजें बाद पढ़ना है। तो इस चीज में पहले आपको क्या करिए, मेरे हिसाब से पहले एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसके बाद उसको रीड आउट कीजिए, रीड आउट करने के बाद उसको डायरेक्टली क्वेश्चन को जाइए। MCQ आजकल हजार टाइप का MCQ हर कहीं पे मिल जाएगा, बुक्स में, इंटरनेट में, हर जगह में आपको मिल जाएगा MCQ। वो बुक्स को पहले पढ़िए ध्यान से। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं अभी सेमी-सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो सेमी-सॉलिड डोसेज फॉर्म पढ़ लिए, मतलब उसको इमीडिएटली पूरा पढ़ने के बाद इमीडिएटली MCQ में जाइए। तो जब जाएंगे देखेंगे कि आपका 50 क्वेश्चन है, उसमें 15 क्वेश्चन आता है, बाकी 33 क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा होता है सबके साथ। तो उसके बाद फिर वो क्वेश्चन को फिर से दोबारा आप पढ़िए, फिर से दोबारा आप आ गया मार्क्स आया नहीं तो डिसअपॉइंटेड ना होकर फिर से दोबारा आपको वो चीजों को पढ़ना पड़ेगा। फिर से दोबारा वो चीजों को पढ़ेंगे, फिर से दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। 15 से वो 25 तक जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है वो एग्जाम को, और मिनिमम टाइम चाहिए सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि ये जीपैट आपका मैक्सिमम टाइम लगता है। नाइपर में ऐसा नहीं लगेगा, आपको 0.36 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। नाइपर में 200 क्वेश्चन को 120 मिनट मिलता है उधर करने के लिए। जीपैट में आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन नाइपर में नहीं मिले। पहले जीपैट के लिए आपको थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, लेकिन नाइपर के लिए ऐसे स्लो जाने से नहीं होगा। आपको 0.36 जीपैट में जो 1.36 टाइम मिलता है, 1.36 मिनट मिलता है जीपैट में क्वेश्चन करने के लिए, वही टाइम रिड्यूस होकर 0.36 सेकेंड आ जाता है नाइपर के लिए। तो आपको एफिशिएंसी भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको पढ़िए पहले आप, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन को जाइए। क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है तो आप देखिए, आप खुद के मतलब ABCD करके आप खुद ही रफली प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे को ये क्वेश्चन मैं तो ये मेरे को आता है, ये नहीं आता है, ये पढ़ाई कर मतलब यही किया हूँ, नहीं ये पढ़ाई किया हूँ, ये मिस कर गया है, सडनली जिस टाइम में मैं पढ़ रहा था वो और कहीं पे डिस्ट्रैक्शन था, ऐसा टाइप का। तो बाद में वो क्वेश्चन अगर नहीं आता है, जितना क्वेश्चन आता है फिर से दोबारा पढ़िए। जब तक आपका 90% आंसर नहीं आ जाता है तब तक आप उसको पढ़िए। फिर 2 दिन पढ़िए। इसके बाद मतलब नहीं है कि आपका अगर मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसको दोबारा छोड़ दीजिए। फिर से 2 दिन के बाद फिर से अगेन वही सब्जेक्ट को उठाइए, फिर से दोबारा रिवाइज कीजिए, ताकि आपका नॉलेज और भी इम्प्रूवमेंट होगा उसी चीज में। रिविजन इज द मोस्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस। ऐसा होता है एंट्रेंस प्रिपरेशन में। रिविजन अगर आपने स्टडी किया है, अगर रिवीजन नहीं किया तो सब साफ है ना, मतलब आपको रिवीजन भी करना है। अगर मान लीजिए सर 100% सिलेबस है, उसमें 40% आप पढ़ने के लिए एलिजिबल है, तो 40% में 40% को 40 बार रिवाइज करके जाइए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो 40% आप पढ़े हैं उसको जैसे उसी में ही जो क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं है कि हम छोड़ के आ जाए। वही 40% से जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमको आना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हम 80% पढ़ के चले गए, देन हमको क्वेश्चन 40% आता है, 40% नहीं आता है, ऐसा नहीं। अगर आप 40% पढ़ के जाते हैं, वही 40% को पूरा इतना इफिशियंसी से दे दे, फुल कॉन्फिडेंस हो जाए। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की एंटी फंगल ड्रग का पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पढ़ लीजिए कि पूरा एंटी फंगल ड्रग का जो भी क्वेश्चन पूछेगा मेरे को आना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाई लेवल से लो लेवल, ड्रग इंस्पेक्टर से लेवल से स्टार्ट करके नाइपर तक आपका सारे चीजें आपके क्लियर हो जाए। जो भी चीजें आप तैयारी करना चाहते हो, जो भी फ्यूचर में बनना चाहते हो, पहले तो आप टारगेट जो होता है आप फिक्स कीजिए, मेरे को क्या करना है बाद में, तब जाके आपको मतलब कुछ आएगा अंदर से, फील होगा कि मेरे को नहीं, मेरे को इस वे में जाना है, तभी जाके मेरे को लाइफ सेट होगा। कि मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, कि कोई कहेगा मैं ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आप पहले के टारगेट फिक्स कीजिए कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, तब जाके आपको ये आएगा कि मेरे को क्या करना है। क्योंकि जीपाट एक नाइपर, ये तो आपको ओनली मास्टर डिग्री दे के छोड़ देगा, 12,400 रुपया स्टाइपेंड 2 साल के लिए दे देगा, उसके बाद और कुछ नहीं। उसके बाद आपको खुद को डिसाइड करना है आपका वे, सुब्रत कैरियर सेट करेगा आपका जॉब। सुब्रत, थैंक यू वेरी मच। आपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था? आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कोलकाता है, उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। तो आज के इस वीडियो इंटरव्यू या फिर आज के इस पॉडकास्ट का मेन पार्ट यह है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ फार्मासिस्ट एग्जाम, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, और आपने नाइपर छोड़ के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्यों चूज किया? पहले तो सर मैं आंसर दूंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उसके हिसाब से सर उस टाइम में मेरे को पहला तो सबसे बात यह है कि उस टाइम में कोविड ड्यूरेशन था, उस टाइम में पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा माहौल मिल गया था मेरे को। क्योंकि अगर मैं कॉलेज में होता तो इतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता मेरे को पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा पहले प्लान था कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे देखिए सर, जो चीजें होता है गवर्नमेंट एग्जाम, इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे एज यूजुअल जीपाट नाइपर इज द मतलब फास्ट लाडर है वो चीजें, तो उसको उस चीज में कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर लिया है, उसके लिए कोई भी एग्जाम मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है। मैंने उसी चीज को फोकस मारा। तो पहली बात, मैंने इसके लिए पहले तो जो पढ़ाई किया था मैंने जीपाट नाइपर के लिए, वही चीजों को फिर से दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर दोबारा रिवीजन करना चालू कर दिया मैंने। वो चीज पूरा सिंपल कॉपी पेस्ट जैसे ही मैंने पढ़ाई किया था, एग्जाम वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। फंडामेंटल फार्मेसी का होता है, आप ऑनलाइन में जाओगे तो उधर आपको मिल जाएगा एग्जाम्स देने के लिए सर का। तो वो सर को हमने ये लिया था, वो एग्जाम जीपाट के लिए लिया था उस टाइम में एग्जाम, फिर से दोबारा वो क्वेश्चन को मैंने देखा, कुछ एग्जाम मैंने ब्लैंक छोड़ा था, उसको मैंने एग्जाम। उस टाइम पे आपने क्रैक कराची और का एक जो क्वेश्चन बैंक था वो भी लिया था आई थिंक, वो और नोट्स थे आपके पास मेरे। ये सर नोट हमने तो वो नोट को हमने प्रिंट आउट करके वो चीजें पढ़ना किया था। वो चीजें जो भी आपका सर है हमारा क्यूटी, स्कोलॉजी, केमिस्ट्री, एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, वो चीजें नोट पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। वो जो चीजें होता है ना सर, एक्सट्रैक्ट करके वो चीजें देते हैं मतलब बुक से, जो चीजें आपको बुक में नहीं पढ़। अभी वो सभी जो नोट्स में पहले आपको देता था पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ में जो नोट्स में पीडीएफ के स्वरूप में देता था, अभी वो सभी नोट्स मेरे वो बुक में मैंने अभी पब्लिश कर दिए हैं। बुक में तो वो बुक में सर का बुक से और कुछ भी नोट्स के जिसके पास है जो भी है, वो चीजों को आप पहले प्राइमरी पूरा पॉइंट बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप वो समझ पाएंगे। क्योंकि सर जो देते हैं वो बुक से एक्सट्रैक्ट करके देते हैं, ताकि आपको दोबारा बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सर वो चीजें आपको एक्सट्रैक्ट करके, कुछ चीजें नेग्लेक्ट करके, कुछ चीजें जो मेन पॉइंट है उसी चीज को पढ़ने के लिए आप देते हैं। और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवाइज वो चीजें हो सकता है। बुक से आप केडी त्रिपाठी उठाओगे, केडी त्रिपाठी रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप कंप्लीट भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे वो चीजें में। कोई बोलते हैं हमने केडी त्रिपाठी 5 बार साथ दिया, कोई बोलता है लास्ट में लिबर मैंने 6 बार पढ़ लिया, वो चीजें पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो ऐसा नहीं होता है। वो चीजें आप पढ़ के नहीं पूरा ये कर सकते। एक पेज पढ़ोगे, दूसरे पेज में भूल जाओगे क्या था, क्योंकि बहुत सारे मिसलेनियस चीजें उसमें होता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं पूछा जाता है। वो चीजें लेक्चरशिप के लिए ठीक है,
हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो इतना सारा नहीं होता है। वो चीजें आपको बस फंडामेंटली वो कॉन्सेप्ट को फिक्स करना है आपके माइंड में। जो चीजें आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएगा, आराम से इजीली मिल जाएगा। तो वो पहला बात तो मैं ये जो जीपैट के लिए मैंने स्ट्रैटेजी किया था वो चीजें सेम चीजें को मैंने दोहराया। और सेकंड चीज वन ऑफ द अनदर थिंग्स इज दैट एक चीजें होता है आपका इधर आता है जीपैट में नहीं पूछता है आपका जनरल नॉलेज वगैरह, वो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब जीपैट में नहीं पूछता है, लेकिन नाइपर में पूछता है। और नाइपर में थोड़ा अलग अलग टाइप का जीके वगैरह पूछता है और गवर्नमेंट एग्जाम्स में थोड़ा अलग टाइप का जीके वगैरह पूछता है। जैसे कि आपका कोई ड्रॉप का आपका पूछ देगा तो ब्रांड नेम वगैरह ये चीजें वगैरह पूछता है नाइपर में, लेकिन आपको गवर्नमेंट एग्जाम में इतना सही इस सब में नहीं जाएगा। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाएगा, जनरल नॉलेज में जाएगा। तो वो चीजें के लिए आप नॉर्मल कोई बुक लुईस पेन का बुक उठा लीजिए या कोई भी ऑनलाइन में वीडियो में देख लीजिए। वो चीजें छोटी छोटी चीजें मैथमेटिक्स वगैरह वो चीजें पूछते ही रहते हैं, क्योंकि फार्मेसी का सिलेबस तो हर कोई खत्म कर सकता है फार्मेसी वन जो बच्चे होते हैं, लेकिन नॉन फार्मा को इतना ज्यादा, नॉन टेक पार्ट को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं देते हैं। तो उस चीज को भी ध्यान में आप रखिए। तो नॉन फार्मा जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं नॉन फार्मा को भी उतना ही तैयारी करिए जितना आप फार्मा को देते हैं इम्पोर्टेंस, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इधर आप देखिए जीपैट में 4000 सीट है, नाइपर में 700-800 सीट है, लेकिन इधर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको 4000, 700-800 या 100 सीट ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मार्क्स टू मार्क्स कहीं पे 20, 15, 4 में तो जब दिया था 4 सीट थे इधर। 4 सीट मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट ने वहाँ पे एग्जाम दिया होगा 4 सीट के लिए। कितने एप्लीकेशन आए होंगे, उसमें से आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट होता है और आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको बहुत टेक्निकल पार्ट एज वेल एज नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों को आपको देना पड़ेगा, दोनों साथ में करना। और जीके के लिए कौन से बुक्स यूज करने चाहिए या फिर एप्टीट्यूड के लिए कौन से यूज करने चाहिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। सर फार्मेसी के लिए तो मैंने बोल दिया, ऐसे ही पूरा सिंपल एज यूजुअल जीपैट लेवल का जो प्रिपेयर करते हैं वही कीजिए, लेकिन थोड़ा आप बेसिक चीजों में ध्यान दीजिए। जैसे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, वो बेडेड हॉस्पिटल जो होता है उसमें हो गया, कौन सा डिस्पोजेबल आइटम कैसे हो गया, वो चीजें थोड़ा बेसिक, हाँ जो बेसिक चीजें होता है गवर्नमेंट में वो पूछते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई करते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन दोनों के लिए मांगता है। तो आप ये चीजें में फोकस कीजिए। और मैथमेटिक्स वगैरह आप कहीं पे भी उठा के पढ़ सकते हैं। मैं खुद ही सर पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं लुईस एंड जीके बुक एक आता था, उसको खरीद के मैंने पढ़ाई किया था। लुईस एंड का जीके बुक आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स ये सब आता है। उस जगह कोई प्रेसिडेंट गवर्नर के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा पावर आपका प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है जो गवर्नर के हाथ में नहीं रहता है, आपका चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये सब चीजें क्या होता है, वो चीजें सब पूछ लेगा। कहीं पे खेल वगैरह से पूछ लेगा, कौन सा वर्ल्ड कप किधर हुआ था, ये सब चीजें में आपको बुक्स में कुछ चीजें मिल जाएगा, कुछ चीजें आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा। कोई टीचर आते हैं वो, हाँ कोई टीचर, क्योंकि सर ये जो चीजें होता है कब फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था, ये चीजें ये तो बुक्स में अपडेटेड नहीं रहता है ना, ये वीडियो से ही आपको नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें कुछ लॉजिकल रीजनिंग, मैथ वगैरह कुछ टाइप का आप देखेंगे जो नाइपर में आता है मैथ टाइप, वही वेराइटी गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछता है। नाइपर में जैसा आपको मैथ टाइप आता है उसी टाइप का ही गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है, डिटो उसी टाइप का। ये ट्रेन इतना स्पीड से जा रहा है, वो ट्रेन इतना स्पीड से रहा है, दोनों ट्रेन जब सामना सामने होंगे तो वो कितना, इसका कितना स्पीड होगा, उसका कितना स्पीड होगा, ये टाइप का। ये साउथ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन, दोनों जा रहे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये टाइप का लॉजिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये डिपेंडेंट करता है, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। कौन सा, कोई एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछता है, कोई एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछता है। आपका चीजें, आपका फोकस एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम कुछ कितना भी क्वेश्चन पूछ ले, वही सिलेबस से आपको पूछेगा। तो आप सबसे क्लियर हुई, सबसे पहले क्लियर हुई है जो मेरा सिलेबस खत्म होना चाहिए जो पूछ रहे हैं। हाँ, और ऐसे देखिए कि जीपैट के लिए या नाइपर के लिए, जीपैट वगैरह के लिए आप कुछ टॉपिक आप छोड़ देंगे तो भी आपका सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में आपको सारे चीजें पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर आपको मार्क्स लाना ही है, एटलीस्ट 70%, 80% मार्क्स लाना ही है। और वो तभी हो पाएगा जब आपको पूरा सिलेबस खत्म होगा, विथ मैक्सिमम रिवीजन होगा। और इतना ज्यादा अभी डिफरेंस नहीं है, पूरा
जो हमारा फार्मेसी में जीपैट नाइपर जिसका हुआ है और वो जो चीजें को पढ़ाई को मेंटेन किया है, उसके लिए कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम हो या प्राइवेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए डिफिकल्ट नहीं है। ये मेरा पर्सनली मैंने जो आज तक मैंने फील किया है सर। सो जीपैट नाइपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। अगर वो क्वालिफाई हो गए तो आपके लाइफ में कौन सा भी एग्जाम हो आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच सुब्रत कुमार साहू, एंड इट वाज वेरी नाइस एंड इट वाज वेरी फॉर्चुनेट टू टॉकिंग विथ यू। डेफिनेटली बच्चों को इससे हेल्प हो जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है। और लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द रोल ऑफ फंडामेंटल फार्मेसी इन योर सक्सेस? वैसे बोलूँगा तो फंडामेंटल फार्मेसी का तो सर उसके वजह से ही सक्सेस मिला है, वन टाइप ऑफ मैं बोल सकता हूँ सर। क्योंकि अगर उस टाइम में हमने वो ग्रुप में डिस्कस नहीं किया तो आज भी मेरे को सर वो याद आता है कि क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके भेजते थे ग्रुप में, सारे बच्चे आंसर देते थे, रीजन भी बताते थे। वो चीजें नोट्स हमने देखते थे, नोट्स को अंडर मार्क करके वो भी फोन में स्क्रीनशॉट लेके भेजते थे। वो चीजें इतना सारा डिस्कशन होता था, वो चीजें सर क्या बोलूं। और वो चीजें सर कभी भूल नहीं हो सकता। वो चीजें जो होता है फंडामेंटल फार्मेसी के थ्रू में, ऑनलाइन के थ्रू में हमने जो किया है, वो चीजें हर रोज डिस्कशन होता था। और पढ़ाई वगैरह, नोट्स वगैरह आप जो भेजते थे इमिडिएटली, वो चीजें क्या है कि सर वो ऑनलाइन जो भेजते थे वो नोट्स इतना हेल्प किया। मतलब मेरे को लगता है वो आपको केडीटी, लैकमैन ये चीजें पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। मैंने तो पहले ही ये सब पढ़ता था, केडीटी, लैकमैन। कभी पढ़ूंगा तो बोर आ जाता, नींद आ जाता था वो चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से ले आते हैं वो चीजें। लेकिन आप जो नोट्स होता है उसमें टू द पॉइंट वाइज रहता है वो सब्जेक्ट। मान लीजिए कि कोई भी आपको नहीं, वो पढ़ाई में समझ में नहीं आया नोट्स में, मैं ऐसा करता था, ऐसा तो नहीं सारी चीजें समझ में आ जाएगा मेरे को, तो मैं क्या करता था, बुक्स नहीं उठाता था, वही जो टॉपिक है, वो जो चीजें को मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन में सर्च कर देता था। वो सर्च करता था, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता था वो नोट्स के साइड में मैं लिख लेता था वो चीजें को, ताकि दोबारा जब पढ़ूं वो सेम डाउट रिपीट ना हुए मेरा। मतलब आप फिर से मेरे को ऑनलाइन में ना दे। मतलब आप मेहनत करते थे, आप जो भी चीज आपको मालूम नहीं उसके बारे में सर्च करते थे, ढूंढते थे। मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। ये सर डेफिनेटली सर, नोट तो वगैरह साथ दे देंगे, वो चीजें आप सर खुद के करके दे देंगे, लेकिन आपने आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 70,000 बच्चे बैठते हैं जीपैट में, उसमें से ओनली 4,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये भी आप समझिए ना वो चीजें से। तो आपको नोट्स ऐसा नहीं है कि नोट्स आप सब कुछ कर देगा, हार्डवर्क चाहिए आपके लिए। बिना पेशेंस, प्रिजर्वेशन एंड हार्डवर्क, ये तीनों चीजें में कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तीनों में आपको हर रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटा, वो नोट्स हो, जहाँ भी हो, आप जो भी पढ़ रहे हैं तो वो चीजें पढ़ना पड़ेगा। और पहले एक माइंडसेट कीजिए कि मेरे को आज एंटी ड्रग या एंटी कैंसर ड्रग को मेरे को स्टार्ट किया हूँ तो एंड करना ही है। ऐसे टारगेट फिक्स करके पढ़ेंगे तो छोटा छोटा टारगेट फिक्स करके पढ़ेंगे तो ही आपको सक्सेस। नहीं कि मेरे को आज 4 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। हर रोज कुछ पढ़ना पड़ता है वो चीजें। जो भी आप जिधर से नोट से पढ़िए या जिधर से भी पढ़िए, हर चीजें में आपको छोटा छोटा टारगेट फिक्स करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा कंपल्सरी। उसको एंड में जाके इतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी सोचे नहीं होंगे कि मैं इतना छोटा सा टारगेट फिक्स करके पढ़ता। आज मैं खुद ही सर बोल रहा हूँ, मेरे को माइंड में स्ट्राइक नहीं करता था कोलोजी वगैरह। मैं पहले एक मान लीजिए कि मैं एंटी फंगल ड्रग पढ़ रहा हूँ, पहले क्लासिफिकेशन को मैं पढ़ता था, एक दिन मेरा लगा लेता था पूरा। मैं आज इसको जो भी हो, जैसे भी ट्रिक हो, मैं याद करके ही रहूंगा इसको। फिर दोबारा नेक्स्ट डे को वही मेरे को ड्रग याद आ जाता था, वो उसी ड्रग का मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ लेता था। ऐसे उसके बाद फिर से यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, ये तीनों पढ़ना पड़ता था। बस इतना ही चीजें है। हर चीज में कॉलेज में आप इतना ही चीजें पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा थ्रू डायग्रामेटिकली। उसके बाद आपको यूजेस देखना पड़ेगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखना पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट देखना पड़ेगा। यही चीजें सारे कॉलेज का ऐसा ही देखना पड़ेगा आप। थैंक यू वेरी मच सुब्रत, एंड डेफिनेटली दिस सेशन विल हेल्प this session will help to the students, and student will take lot of things from this session. And thank you very much for giving your precious time to us.
एंड आपको आपके फ्यूचर करियर के लिए आप जो भी करना चाहोगे, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर के आप बारे में सोच रहे हो, आपके उड़ीसा का ड्रग इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी आने वाला है ऐसा न्यूज़ में है। और काफ़ी उड़ीसा के जो आपके जूनियर्स होंगे वो भी मुझे कॉल करते रहते हैं और उन्होंने ही मुझे बोला कि सर उड़ीसा का ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आने वाला है एंड दे आर गोइंग टू ट्राई फॉर DI एंड ऐसा। तो आपके लिए अगर उसको वो भी करना है आपको, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे अभी भी याद है कि 2 साल हो गए आपको जब आप पहले ज्वाइन थे ग्रुप में। आई थिंक अभी भी आप ज्वाइन हो ग्रुप में। सर हूँ मैं ग्रुप को छोड़ नहीं सकता, वो ग्रुप को। थैंक यू वेरी मच। और कैसा रहता है, देखो मैं तो बोलते ही रहता हूँ बच्चों को कि ऐसे करना है वैसे करना है, आपको ये करना है, लेकिन क्या होता है जब तक उनके पास में उनके सामने लाइव एग्जाम्पल नहीं होना तब तक वो उतना ये नहीं करता कि मेरे से वो बोर हो जाते हैं। और उनके सामने अगर कोई लाइव एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप जैसे आपका जीपैट 20 में रैंक आएगा 300, नाइपर 20 में रैंक आएगा 396 और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट CGSS में आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, तो दे आर गोइंग टू फॉलो यू, दे आर गोइंग टू एडमायर यू। सो दैट्स व्हाई द पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज दैट ओनली, कि बच्चों को हेल्प मिल जाए, है ना, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही सर बोल